1 minute. Now, then what the problem happens so far that they sometimes face the difficulty that either this option was not given true or false, right? So today our concern is with the some of the true false not given questions. Here the first technique that is called synonymized technique, जो कि आपके IELTS reading में use हो सकती है, right? And 100% that is going to be followed so far in true false especially. Now the like it means that sentence will not be in the same position, same structure, or in the same words as it will be given in the question or as it will be given in the paragraph. While comparing, the sentences will be little different, right? Some words will be little different. Now, for example, you might have read one line from the passage that is, government should use the power to reduce the illegal acts in formal departments. Government should use the power to reduce the illegal acts in formal departments. Now, the question for this passage line can be like this: high authorities are recommended to have some policies to minimize the corruption in the official places. You have to compare both the meaning of the statement and the question. If that is same, so it is true. If that is wrong, so it is false. If that is not mentioned here, so it is not given. So what do you guys think? Either this question comparing to this is true or false or not given? Yes. Sir, I think true. Hmm. How true? It seems true, sir. Because even the same sense, high authorities means governments are recommended to have some policies to minimize the corruption in their Yes, yes. officials. So the words are synonymized actually. We have to simply what we have to do for such kind of question that we have to translate it into our own native tongue, right? We have to look for the meaning of these words, such words or sentences in our own native language. If the meaning is similar, so we have to conclude it that it is true, right? As far as here it is so far. Okay. Next we have, so it is true. Next, we have active to passive technique. What does it mean? You would have gone through active passive sentences in your grammar somewhere in school or anywhere. Now, the active to passive, where active to passive means like all the sentences are in the if they are in the simple structure, so we call them active. But if we start the sentences from the end word, it becomes passive, like from object, right? Now, the similar question, if the similar sentence from the passage, if the question comes for this line, they say statement like this: corruption can be stopped by the high authorities for some good results in the formal institutes. Till here. So what do you think? This one is true, false, not given, and why? Yes. Yes. What do you say about this question? Sir, again, it is true. It's true. Why? Yes, sir, it is true. Why and how? Sir, again, the sentence that corruption can be supported means high authorities, like government can control corruption high Hmm. authorities for Hmm. some good results in the formal Yes. institute. Yes, yes, yes. Okay. So if the meaning is same, we have to conclude it that the option is true, right? Very good. Okay, so again the meaning is same actually. It has started from corruption word, but the message is same. Next we have active to active words techniques. Like some words might be extra added, but the information will be again the similar, and then we will again say it is true. For example, this is the statement. And for this statement, here is a question. Corrupt official organization needs to be clean from any kind of corruption, and by that way, there will be prosperity. Mike, Naila Kiran. Yes. Okay. Now, who will tell me? Is this true, false, not given? Yes. Yes, It also guys. true.
Other students, is true, false, not given. Saima and others. Sir, it looks again correct. Yes, yes. If the information is matching and it is Yeah. giving the same concept, so the concept is same actually. The meaning words are different, but the concept is same, so it is again true. Now we are moving to such word where there might be not having the exact synonym word, like for education, we might be having such words: writing, reading, learning, acquiring, guidance, awareness, skills, improving. Now, for such kind of MCQs where we don't have the exact synonyms, we have to what we have to do, we have to again then look either the similar word, if that is matching with this base word, then we will again come to the option that is true. For example, there is a passage: educational activists are improving in Australia, and the question is, the academic session is improving in Australia. Is true, false, or not given? True, sir. Good, good, good. It was easy. Now, look at the number technique where number two words will be mentioned so far. And numbers might be different. You have to look at the concept. For example, yes, the answers that I have written here, false, true, not given, do not look at them because those are just for confusions, right? To perplex your minds. So 76% are unhappy in their offices from passage line. And in the question, we say 24% of people are happy in their offices. True, false? True, of course. Yes, sugar. Okay, so this is also true, right? Because 24, 76. Okay, next we have there was a Renaissance, the 16th century. Sorry, there was a Renaissance before 17th century, and if we say 16th century was Renaissance time period, then ऊपर It पैसे is जे true, लिखे sir. हुए Yeah. जी yes True. how Sir, because he's talking about before me say पहले तो 16th century was. यस बिफोर में हम उसी में जाएंगे जो उससे पहले आ रहा है बार 15 14 13 नहीं तो एग्जैक्ट फिगर में हम जाएंगे सो नंबर टेक्निक में you have to look mostly the number will be different, right? In number technique mostly the number will be different but the meaning might they be conveying the same, right? The similar idea. So इसमें again आपने ट्रू फॉल्स को देख रहे हैं और अमूमन इसमें भी ट्रू होता है। अच्छा, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपने थोड़े से ध्यान में करने हैं और आपने सही भी करने हैं। देखिए, इफ वन वर्ड इज मिसिंग, द कंसेप्ट इज मिसिंग। नाउ passage line is here: Romans are far better than Greeks. Romans are far better than Greeks in what? In education, in literary. Now question is, Greek imitates the Romans in education. What do you think? True, false, not given? जी yes. What do you think? True, false, True. not क्यों? क्यों? Because sir, Greek means Romans are offer the better Greek in literacy क्योंकि वो better है मतलब अच्छे हैं तो sir it giving the same sense. Okay. Um, yes, other students? Yes, sir. इन्होंने कंपेयर किया हुआ रोमन्स आर बेटर देन ग्रीक्स और इन एजुकेशन और ऊपर जो है वो है कि ग्रीक्स इंटीमेट के उनको वो कॉपी करते हैं रोमन्स को हाँ, तो इट इज फॉल्स आई थिंक सो
फॉल्स तो तब होता कि अगर ये कहते कि नहीं रोमन कॉपी नहीं, सॉरी रोमन बेहतर नहीं है, ग्रीक बेहतर है, क्वेश्चन में अगर कहते हैं। फॉल्स तो उसे कहते हैं जो गलत इंफॉर्मेशन हो, जो सेंटेंस जो दिया गया हो पैसेज में उसके बरअक्स बात की गई हो। और नॉट गिवन वो होता है जो बिल्कुल उस बात को मेंशन ही नहीं किया गया, नॉट गिवन है। जी, विल टेल मी। यस, अदर स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। मैं था आप क्लास लेफ्ट करें, अगर आपको समझ आ रही तो ठीक है रहें, और अगर नहीं समझ आ रही तो क्लास लेफ्ट करें। आपकी क्लास लिस्टिंग की 9 PM हो रही है, बस वही एक क्लास काफी है आपके लिए। अगर समझ नहीं आ रही तो लेफ्ट करें, डोंट वरी, आपकी रीडिंग अभी 9 PM में डिस्कस होगा। अभी 9 PM में लिसनिंग टेस्ट चल रहे हैं। यस, बाज दफा जो आपको लिंक शेयर हो जाता है तो ज्वाइन कर सकती है, करें, नहीं करती ना करें, सिर्फ एक क्लास ले लिया करें। ओके। यस, कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को वैसे भी। यस, नॉट गिवन, सादिया क्यों नॉट गिवन है? यस सादिया, व्हाई इट इज नॉट गिवन? एक्सप्लेन इट। कुड यू एक्सप्लेन इट in voice? uh, Unmute yourself and explain it. अच्छा ये देखें, रोमन्स आर फार बेटर है ना ग्रीक से एजुकेशन में। अब कोई अगर बेहतर होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यूएसए इज बेटर इन एजुकेशन देन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तब पता चलेगा जब हमें बताया जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि फॉलो करें। जो भी क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी शो करे 50%, लाइक इट शोज पॉसिबिलिटी कि ये प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपके साथ नॉट गिवन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेंशन किया गया है तो फिर तो ठीक है, फिर तो ट्रू है। अगर मेंशन नहीं किया गया और आपको लग रहा है तो लगने पे तो हम एमसीक्यूज को नहीं लगाते अगर 100% कंफर्म बात ना हो। सो इट हियर, ये जो कह रहे हैं ना रोमन्स आर बेटर देन ग्रीक्स, अब ग्रीक वाले इनको फॉलो कर भी नहीं या नहीं कर रहे हैं ये तो हमें नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि रोमन्स बेहतर है। और क्वेश्चन में पूछा, कह रहे हैं रोम ग्रीक, अब उनको कॉपी भी कह रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर, इट इज नॉट गिवन। इज इट क्लियर? यस। यस, गुड थैंक गुड। यू। ओके, डिफरेंट इन टेंसेस, जब आपका टेंस डिफरेंट होगा तो आपका क्वेश्चन और नॉट गिवन में चला चला जाता है, अगर टेंस डिफरेंट होगा, राइट। और टेंस को डिफरेंट को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन के। अगर टाइटल भी पैसेज का एक टेंस में, पैराग्राफ एक टेंस में, क्वेश्चन अलग टेंस में, तो वहां पे भी ऑप्शन आपका नॉट गिवन में, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक जमाने की बात कर रहे हैं, इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वन टाइम पीरियड एंड द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट अनदर टाइम सो फार, so at here again the information will be not given. Now for example, now a question, at here you are having a passage, sorry, at here British people are used going to the Madame Tussauds Museum for their entertainment. And then you have a question, Madame Tussauds Museum used to the greatest attraction for Britishers. Yes, true, false, not given. ये वाला आप लोगों ने सही करना है। जी। जी। सर ट्रू लग रहा है, क्योंकि दोनों में एक ही बात है कि वो जाते हैं टूरिस्ट। हम्म। बाकी स्टूडेंट्स, स्लीपिंग गाइस, हाउ आर यू? बताएं। तो जी, ट्रू है यार। एक यस ट्रू के सर। यस सर। आप आपके एक ट्रू के लिए तो 1 घंटा होता, फिर तो आपके टेस्ट में 9 पॉइंट, आपके 10 बैंड्स आ जाते, 9 से भी ऊपर। जल्दी करें ना, बताएं बाकी स्टूडेंट्स किधर सो रहे इनिशियल स्टेज है तो सर खाम खा थोड़ा बहुत तो वो करो बस। हैं? आपको मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन आप लोग उस वक्त क्वेश्चन को देख रहे थे। सर सबका आंसर गलत है, दोबारा रीड करें और दोबारा मुझे बताएं।
नहीं, अगर टेंस डिफरेंट है फिर ऑप्शन नॉट गिवन है, तो आप दोबारा रीड करने टेंस है क्या? जी। यस। So you're right that tenses are different in both statements, but the information सर looks same. क्योंकि सर वो हाँ, ऊपर कह रहे Mhm. कि अट्रैक्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, और नीचे कह रहे हैं कि वो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेम है, डिफरेंस। सिनोनिम मुतरादिफ है। देखिए क्वेश्चन देखें दोबारा। मैडम क्वेश्चन इज सेइंग, सॉरी पैसेज, पैसेज इज सेइंग ब्रिटिश पीपल आर यूज्ड का मतलब है जो आपके डेली एक्टिविटी में कोई चीज हो तो हम कहते हैं आई एम यूज्ड टू इट, दे आर यूज्ड टू इट, लाइक मतलब वो रोजाना करते हैं। ब्रिटिश पीपल आर यूज गोइंग टू दिस म्यूजियम, मतलब वो अभी जाते रहते हैं, अभी जाते रहते हैं, राइट। आर यूज का मतलब अभी जाते हैं। और क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्रिटिश पीपल, सॉरी मैडम तुसिया म्यूजियम, एक तो एक्टिव से पैसिव में आया है, इसको भी देखें। मैडम तुसिया म्यूजियम यूज्ड थी द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन फॉर ब्रिटिशर। अब यहाँ पे जो यूज्ड है एक बड़ा वर्ड इन्होंने काया हुआ है, वन वर्ड इज मिसिंग, द होल कॉन्सेप्ट इज मिसिंग। तो यहाँ पे एट हियर व्हेन दे हैव नॉट पुट दिस आर, सो द मीनिंग इज लिटिल डिफरेंट। हाउ? पैसेज में कह रहे हैं कि अभी जाते रहते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माजी में भी जाते थे। अब माजी में जाते थे या नहीं जाते थे, ये तो इधर पैसेज में डिस्कस ही नहीं हुआ, राइट। हो सकता है माजी में नहीं जाते थे, हो सकता है जाते थे। तो हम ट्रू लगाएं या फॉल्स? हाँ तो हम तो Given. नॉट गिवन लगाएंगे ना, जिक्र ही नहीं Not है। not given. यस 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 यस। बाकी स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आई दोबारा पढ़े स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, पूरा दिन इसी को पढ़ते रहेंगे। अच्छा, बास आपके क्वेश्चन में आ जाता है मल्टी फंक्शन का वर्ड और सिंगल फंक्शन का वर्ड। हमेशा याद रखें जब क्वेश्चन का टेंस आर इज वाज इसको देखा करें तो टेंस मुख्तलिफ तो नॉट गिवन होगा। अच्छा, बास क्वेश्चन में आपके इफ दे गिव यू मल्टी फंक्शन वर्ड एंड सिंगल फंक्शन वर्ड, सो जब फंक्शन का वर्ड आ जाएगा एट हियर यू हैव टू फोकस ऑन दैट वेरी मच। मोस्ट प्रोबेबली 90 प्लस सिचुएशन में आपका फंक्शन वाला वर्ड एमसीक्यूज नॉट गिवन ही होता है, राइट। लेकिन फिर भी ध्यान से आपने पढ़ना है। कैसे होता है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन है at here, question had here, a marker, sorry, passage. Marker has multiple function and that's why people like it. Marker has multiple function, marker के बहुत सारे functions है, लोग इसको इस वजह से पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मार्कर कैन बीट नाइसली, फंक्शन जिक्र हो गया। और मार्कर, क्वेश्चन क्या कहता है? मार्कर नाइसली अच्छी तरह से बीट कर सकता है। अब वहां पैसेज में बताया भी है कि बहुत सारे फंक्शंस है, अब क्या होगा? ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है? किसने सही करना है बताएं। जी। सर ट्रू है। बाकी स्टूडेंट्स ट्रू क्यों है? सर ट्रू इसलिए कि बीट्स नाइसली फंक्शन है, यहाँ भी मल्टीपल फंक्शन, मतलब वो भी फंक्शन की बात करें, नीचे भी मल्टीपल फंक्शन कैन डू सर। ओके बाकी स्टूडेंट्स, साइमा यू एक्सप्लेन इट। सादिया आप क्लास में हैं, सो रही है? यस एक्सप्लेन इट। सर मुझे रीजन नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जैक्टली वो चीज नहीं है जो क्वेश्चन में है पैसेज में, लाइक इट्स हाँ, नॉट गिवन, लेकिन मुझे एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करना आएगा कि व्हाट्स द रीजन। आंसर क्या है? नॉट गिवन है आंसर। बाकी स्टूडेंट्स, सादिया एंड किंजा। सर मुझे भी नॉट गिवन लग रहा है। किंजा आपको क्या लग रहा है? यस, किंजा अप्लाई के साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बने। ओके इट इज नॉट गिवन, गुड। नॉट गिवन कैसे है कि पैसेज में कह रहे हैं मार्केट के बहुत सारे फंक्शंस है, लोग पसंद करते हैं, और क्वेश्चन में कह रहे हैं
मार्कर अच्छी तरह से मार सकता है, लेकिन अच्छी तरह से मारने वाली फंक्शन को पैसेज में जिक्र नहीं हुआ। बहुत सारे फंक्शन की तो बात हुई है, पर उन बहुत सारे फंक्शन में ये वाला फंक्शन इंक्लूडेड है या नहीं है, हो सकता है इंक्लूडेड हो सकता है नहीं हो। पता तो तब चलेगा जब बताया हो, राइट। तो ये आपने नॉट गिवन लगा देना है, समझ आ गई ना? यस, गुड। ओके, नेक्स्ट वी हैव अब जब आप बोले तो माइक अनम्यूट किया करें किंजा, फिर आपकी आवाज आएगी। नीचे जो रेड माइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पैसेज है, ऑस्ट्रेलियन आर काउड विद अ मल्टी फंक्शन फेंस विच हैज मल्टीपल नेम्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। और फिर क्वेश्चन है, हाँ दो आपकी स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ये फिर कहते हैं हमने क्या पढ़ा। क्वेश्चन है, फेंस प्रोटेक्टर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब इस पैसेज से ये क्वेश्चन कंपेयर करें, और ये जिसने सही किया, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी ग्लैड। सर ये रॉन्ग है, फाल्स है, क्योंकि उस पे पैसेज में ऑस्ट्रेलियंस की बात हुई है जस्ट, लेकिन क्वेश्चन में। फॉल्स सर। false, रीड इट ट्वाइस। इसमें दो जगह ऐसे पॉइंट आपके सामने जिक्र हुए हैं जिससे क्लियर पता चलता है कि ऑप्शन फॉल्स नहीं कुछ और है। दो जगह, दो पॉइंट्स है जो अभी हमने डिस्कस किए, उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं। आपने सही एक्सप्लेन किया, एक स्टूडेंट में नाम नहीं लूंगा, फिर आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा सा इस पे सोचें। एक्सप्लेन सही किया, ऑप्शन गलत चूज किया। जी। यस। जी स्टूडेंट्स, गाइस, क्या हो रहा है? यस, समात, साइमा, किंजा। सर इसलिए आपको आइडिया हुआ कि रीडिंग हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और जो बता रहे हैं वो रॉन्ग बता रहे हैं। तो इस पे सोचे ना, इसमें देखिए जो एमसीक्यू डिस्कस हुई उसका आपको बहुत फायदा होगा। इस पे सोचे आप। अभी आपको फायदा मैं दिखाऊंगा, अभी मैं आपसे टेस्ट लूंगा क्विज, तो आपको पता चलेगा फिर। लेकिन ये वाला तो बताएं, इस पे सोचें कि क्योंकि ये तो आपके आपका लेवल तो अच्छा है। वीक स्टूडेंट्स भी बता देते हैं, तो आपका लेवल तो अच्छा है साइमा। अमाद का भी लेवल अच्छा है, बाकी स्टूडेंट्स भी सही है। यस। जी। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन है ना पैसेज, ऑस्ट्रेलियन आर काउड विद मल्टीपल फंक्शन फेंस। मल्टी फंक्शन फेंस से कवर्ड है, जाली से, तार से, बाउंड्री वायर से, जिसके क्या है, which has multiple names in multiple languages, which has multiple names in multiple languages, so far fine. And now question is, fence a protector is known by different names in different countries. ये जो वायर है, बाउंड्री वायर जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ ममालिक में। सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया वहां पे टारगेट हुआ है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं है, तो नॉट गिवन में एक ऑप्शन तो यहाँ से गया। सेकेंडली के ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पे नहीं बल्कि कंट्रीज की बात हुई है, और कंट्रीज का वहाँ पे तस्करा नहीं हुआ, मुख्तलिफ जबानों का तस्करा हुआ है, लेकिन वो तो एक कंट्री में भी बोली जा सकती है,
टारगेट एक स्पेसिफिक कंट्री हुआ है पैसेज में, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड, आपके लिए जो बहुत आसान पॉइंट मैंने इससे पहले बताया, डिफरेंट फंक्शन का। जब आपके सामने कोई सवाल या पैसेज मुख्तलिफ फंक्शन को टारगेट करें और सवाल एक वाहिद फंक्शन को उसमें जिक्र करे, अब अगर वो फंक्शन वहां पे मेंशन की गई है तो फाइन, नहीं की गई है तो नॉट फाइन। अब ये तो जरूरी नहीं है कि एक वायर आपने लगा दिया वो प्रोटेक्शन कर रही है, हो सकता है ना कर रही हो, वीक, उसके बहुत सैकड़ों फंक्शन हो लेकिन प्रोटेक्शन में वो वीक हो। अब ये देखें, ऑस्ट्रेलियन आर्कआउट विद मल्टीपल फंक्शन फेंस विच हैज मल्टीपल नेम्स। मल्टीपल फंक्शन फेंस से उसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, मल्टीपल नेम्स है, लेकिन हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए नहीं हो, सिर्फ बाउंड्री वायर हो, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि एक हमारे साथ ऐसा प्रोटेक्शन, ऐसा फेंस जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन है ऐसा फेंस जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो प्रोटेक्शन के लिए वायर इस्तेमाल हो रहा है, सवाल में जो कहा जा रहा है, क्या ये इस मल्टीपल फंक्शन में इंक्लूडेड है या नहीं है? वहां पे तो बहुत सारे फंक्शन बताए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वायर के इरिगेट सर्कमस्टांसिस के, लेकिन ये इसको इंक्लूड करता है मल्टी, ये सिंगल फंक्शन को या नहीं? ये आइडिया तो हमें तब हम गेट करेंगे जब यहाँ पे क्लियर मेंशन हो कि ये प्रोटेक्शन वाला फंक्शन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इस लिहाज से भी और ऑस्ट्रेलिया के नेम के लिहाज से भी ये ऑप्शन आपका नॉट गिवन में आता है। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड। ओके गुड। अच्छा, अभी हम जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट क्विज है आपसे। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा जगह कि यहाँ आपका आंसर है, और उस बेआफ पे आपने ढूंढना है और डायरेक्ट बताना है। इजी है, मुश्किल नहीं है। एज रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये कौन से क्वेश्चन है? ये। अच्छा, इन कैलिफोर्निया, ध्यान से पढ़ें, जो अभी डिस्कस हुआ उसी के पॉइंट्स भी इसमें हो सकते हैं, तो फोकस करें। आसान है। क्वेश्चन जब आप रीड करें तो क्वेश्चन में मेन मेन पॉइंट कैलिफोर्निया हो गया, डिमिनिश हो गया, लास्ट 10 years हो गए, तो वो रीड कर, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके और इसकी मीनिंग को समझे। अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है, और टू मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, फिर आपने जाके पहले इस यहाँ पे ढूंढना है। तो आपका पहला आंसर पहले 3 जुमलों में जी। The amount of open space in California has diminished over the last 10 years in California. जब आपसे कहा जाता है कि बोले तो नहीं बोलती। अब आप किन साहब की आवाज अभी यहाँ आ रही थी तो म्यूट किया मैंने जी। 1 मिनट मुझे दे दें, मैं क्वेश्चन 5 और 6 दोनों देख
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जी 5 नंबर के ऑप्शन की कोई समझ आई? क्या ऑप्शन है? सर ये ट्रू लग रहा है 5 नंबर, क्योंकि इसमें सिनोनिम यूज हुआ है। यस 5 5 पे 5 diminution rather than more residential housing is built. गुड, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा सामा एक्सप्लेन करें कि क्यों ट्रू है। सर क्योंकि जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ द अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस इन कैलिफोर्निया हैज डैमिनिश्ड, इसका मतलब है कि कम हो गई है स्पेस ओवर लास्ट 10 years। यहाँ पे उन्होंने ईयर्स को 10 years मेंशन किया हुआ है, और पैसेज में उन्होंने उसको लास्ट डेकेड लिखा हुआ है। जी जी, Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डिकेड आपका यहाँ पे 10 इयर्स को प्रेजेंट कर रहा है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 6 क्या है? नॉट गिवन। Yes, sir. Not given. व्हाई नॉट गिवन? क्योंकि मैनी एक्सपर्ट्स तो बात ही नहीं कर रहे पैसेज में, तो हाउ वी कैन से दैट मैनी एक्सपर्ट्स ओपिनियन, there is only one person who is talking about in the passage. एक्सपर्ट्स की तो बात अलग है। ऑप्शन क्या है 6 का? तो आप मुझे क्या? तो नॉट गिवन लग रहा है, मुझे नॉट नॉट गिवन गिवन लग, लग रहा है। नॉट गिवन साइमन। ये आपका ओ सॉरी, यस, ये ऑप्शन आपका है नॉट गिवन। और नहीं नहीं, नॉट गिवन नहीं, सॉरी, फॉल्स। फॉल्स में इसमें डिफरेंट रीजन से आ रहा है। देखिए, मैंने एक सर्च बिलीव कैलिफोर्निया इज मेट अ लिटिल प्रोग्रेस, और यहाँ पे देखें सेज टेरी मैकल ऑफ द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट यूनियन, with so much dryness, so much communities to catch fire, so many fronts to fight, and यहाँ पे what is greater intensity session, it becomes an, अच्छा यहाँ पे एक आपका पॉइंट ठीक है, that many experts believe California has made little progress in readying itself to fight fires। अब यहाँ पे बंदे ये भी है, कम्युनिटीज को हम ले सकते हैं, या इसमें यहाँ पे जो मेरी समझ में आ गया, इट बिकम्स एन ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल जॉब। वो पॉइंट पूरा डिस्कस हो चुका है, दैट कैलिफोर्निया हैज मेड प्रोग्रेस इन readying itself to fight fires। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनक्रेडिबल जॉब है पैसेज में, लेकिन यहाँ पे इसे इन्होंने कहा लिटिल प्रोग्रेस है। तो ये लिटिल प्रोग्रेस काम तो वो फुल 100% कंफर्म है, दैट दिस इज cleared at over there, either is 1% has been said so far, but it is included in the paragraph, and उसको इनक्रेडिबल का है, यहाँ पे लिटिल का है। तो फिर क्या होगी आंसर? फॉल्स होगा सर। यस 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 यस, ओके। नेक्स्ट देखें, कैलिफोर्निया हैज रिप्लेस अ रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स। क्या उनके पास बहुत सारे रेंज ऑफ फायर फाइटिंग टूल्स थे? यस। सर इट सीम्स ट्रू। हाउ?
Because they're talking about firefighter tools. They in the beginning, there are so many. They're talking about so many tools, and in the second Hmm. line, they are saying that unions in the past have complained about that, and in the end, they are saying that they have cut down in other programs, but there is funding for firefighting, more Hmm. funding. Yes, yes, yes. Good, good. It's true. Very good. And that is already been fulfilled. Up to date engines और यही आपके फायर फाइटिंग टूल्स है. Has replaced means के provide up to date हो गए. तो ये भी आपका एक ऑप्शन पॉइंट दे रहा है. ओके, नेक्स्ट देखें. आफ्टर सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी सही करना है. ये आपका यहाँ पे है, यहाँ से देयर से लेके यहाँ तक है. पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आप देखें. यस. सर फॉल्स लग रहा है. फॉल्स लग रहे हैं सर, फॉल्स फॉल्स, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि वो डिसअप्रूव ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड एजेंसी वर्किंग टुगेदर, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो मतलब प्रेसिडेंट्स जो है और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो दैट स्पीड एजुकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पर मतलब वो ज्यादा काम कर रहे यस. आपने फॉल्स बोला दोनों ने. हैं। जी सर। यस सर, यस, फॉल्स. यस, यस. और यहाँ पे एक वर्ड है ना, यही आपका फॉल्स को दे वो कर रहा है स्टेट. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन शो किया है, और सेंस. सेंस का मतलब कि दोनों में ताल्लुक बन रहा है, रिलेशनशिप. और कोऑर्डिनेशन का भी मतलब कलेक्शन आपस में. तो बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ड्स वी कैन आल्सो से कि यहाँ पे तो इनके बरक्स अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं. इनके खिलाफ मीन्स मुखालिफ में डिसअप्रूव यूज हुआ है. तो मतलब वो नहीं मैच हो रहे हैं आपस में, तो फिर इस वजह से भी आपका ये वाला ऑप्शन नो फॉल्स है. अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखें 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 देखें. ये वाला, ये आपका आखिरी 3 लाइंस में, लेकिन पहले क्वेश्चन रीड करें उसी तरह. जी. जी. यस गाइस. हाँ, फॉल्स से ट्रू है.
या नॉट गिवन है? यार एक तो आप लोग जल्दी सर बताएं। फॉल्स, फॉल्स क्यों? है। जी। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वो उसको लगता है कि ये सेम रहेगा जो लाइफ जो उसकी वजह से यस, स्पार्क की गुड, वजह से हो रही है, और गुड। उसमें ये वाला सेम जो आपने कर दिया। Yes, we'll continue, and at here we will no longer suffer, right? True false not given में heading findings में fill in the blanks में इन तीनों varieties of questions में कल heading findings की तरफ जंप करेंगे, पैराग्राफ से स्कैनिंग को भी थोड़ा सा करेंगे और heading finding फिर आगे fill in the blanks, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हेडिंग फाइंडिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन तीनों में रीडिंग में ट्राई करें कि प्रोग्रेस मजे के करें और इस पे फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। आंसर जब आपको गलत आपका हो जाए तो उसको दोबारा चेक किया करें। ये गुड स्टूडेंट के प्रोग्रेस होता है, अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है कि आंसर गलत हो गया तो सिर्फ देखा नहीं कि मेरा तो रिजल्ट 12 आए, 13 आए, 35 आए, जितने भी 40 में से, वो आपके आंसर को दोबारा ढूंढ रहा होता है। जितने भी 7+ बैंड स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट में उसमें उनमें मैंने ये क्वालिटी देखी है कि 30 तक जब स्कोर नहीं आता, 29 28 रीडिंग में आ जाता है, या 30 के भी मीन्स लाइक रिस्क में आ जाता है 30 में, तो 36 7 तक जब तक वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तब तक वो हर आंसर जो गलत होता है उनसे वो बाकायदा पैराग्राफ में चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है 7+ बैंड स्टूडेंट्स का। तो ये आप कर लिया करें कि ट्रू फॉल्स को अब आप ज्यादा फोकस करें आज के इस लेक्चर के बाद। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आज करें, कल करें, मुख्तलिफ टेस्ट के ओपन करें, आइल्स फेवर.com के टेस्ट के ओपन करें, ट्रू फॉल्स वाली सिर्फ एमसीक्यू यूज करें फेवर.com से, या ielts.favor.com से, आइल्स ये blog.com से, BLOG, और अगर आइल्स ब्रिटिश या IDP साइट से भी आप ओपन कर सकते हैं, कैम्ब्रिज बुक के अलावा, क्योंकि आपको मैं सिर्फ एक काम दे रहा हूँ, IDP। अगर आप एक काम यही है कि आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन और हेडिंग फाइंडिंग वाले भी अगर करते हैं, हेडिंग फाइंडिंग से अंडरस्टैंडिंग बहुत मजे की बढ़ जाती है। तो ये इन 4 साइड से आप करें और इसकी इम्प्रूवमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको बाकी टेस्ट में इनका बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ऐसे असाइनमेंट में शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपने ऐसे लिखना है और साथ में ऊपर नेम मस्ट लिखें कि ये मेरा नेम है और मैं राइट ऊपर टॉपिक के ऊपर। ओके, soon off, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।